Hello, friends. Welcome back to yet another episode where we will discuss all about the course which is growing exponentially in not only in India but also globally. We are talking about ACCA, and today I am very happy to announce that we have a well-known faculty who is not only a chartered accountant but also teaching ACCA students and mentoring students globally. He is none other than CA Vishal Jain. He is teaching two subjects in ACCA named Financial Reporting and Strategic Business Reporting, as well as teaching CA Final FR, and he is based out of Bangalore. Hello, Vishal. How are you? Uh, Thanks, Salis, for the wonderful round of introduction. And I am very much privileged to have a podcast with you wherein we can discuss the details about ACCA and what is the perceptions about ACCA and what are the actual reality about ACCA and how we can help the students who are either from the 12th background or from a CA background who are willing to pursue ACCA and how exactly what are their questions. And we'll try to answer all these questions in this podcast. To the viewers, I would like to tell this is exactly an 100% informative session. We are not going to pitch you anything or sell you anything here for your kind information. Right. This on the demand of students, because many of the students are currently showing their interest to pursue ACCA course but are currently less informed or misinformed. So the sole purpose of this video with Vishal Jain is only to guide the student so that they can take an informed decision and don't repent later. So, Vishal, can we start the session? Sure, sure, sure. So, my first normally introduction, we are starting like Vishal. Many students, be it CA or somewhere class 12 student, they are extremely curious to know about what ACCA is. And can you highlight or throw some lights on the background of the CA course, how it has evolved, and currently what ACCA is in India? Right, right, right. So, if I have to start about ACCA, I will start from very scratch. ACCA is basically a London-based academy or an organization, I'll say. Started in 1904. Okay, now what happened? It started initially in London itself, and then seeing the growth, it also grew in not only in UK but globally. It is recognized in more than 183 countries, not only in UK. It is recognized plus 183 countries. Okay, so further, it is governed by ACCA itself. The full form is Association of Certified Chartered Accountants. Now, further, if anyone is willing to pursue ACCA, the ACCA as a course is divided into three levels. Level one, that is called as a knowledge level. Level two, which is called as a skill level, and level three, which is called as the professional level. It's similar to the CA course where we have the foundation level, the intermediate level, and the final level. Just the names are different. But yes, the structuring of the course is definitely altogether different as compared to the Indian CA course. Now, if I have to give the papers in level one, that is the knowledge level, we do have three papers. In skill level, that is the medium level, we do have around six papers covering the financial reporting, taxation, law, performance management. The papers are like almost similar to what we study in CA. And in final level, that is the professional level of ACCA, we do have only four papers. Now, what differs here or what makes ACCA more lucrative here is ACCA doesn't ask to study everything. What ACCA does is they will say two papers are mandatory, that is strategic business reporting, which I teach, and strategic business leader. Okay, which is more of, you can say, theory based paper but gives you a practical orientation, like somewhat like SWOT analysis or the Potter's analysis, all those things which we study in SM in CA Inter, if you can relate to. Right now, but further, there are four more papers, like financial management, performance management, taxation, and auditing. And students have a choice to select two out of it. So whatever is the interest area, they can select those papers and pursue that. So that's Okay. a brief introduction about ACCA. Very beautiful, Vishal. And just one thing to add on for the viewers, CA Vishal Jain is a global rank holder in ACCA. And how much rank did you secure, Vishal?
I scored all India rank of 2 and a global rank of 7. Okay, heartiest congratulations for that. So, taking the things forward, ACCA is based upon IFRS, if I'm not wrong. See, if I have to say about IFRS, ACCA basically offers two types of qualifications. That is, one is Okay. the whole ACCA as a qualification, and the another is a diploma in IFRS. Now, when you talk about ACCA full as a qualification, it's like more or less like a Indian CA. Okay, wherein you have to study IFRS also, wherein you have to study the taxation also, law also, performance management, financial management, everything. But further, if you go about diploma in IFRS, it's only about IFRS. So the Okay. general notion about among students is when we talk about ACCA, it's IFRS. No. Okay. So there are two types of classification which is being offered, and accordingly it is being done. Okay. So, Vishal, one thing, are both the classification globally recognized, or do they have some Yes, different? depends upon the requirements. Okay, so Okay. both of them are globally recognized, both the qualifications, because as it's offered by ACCA, so there is no Yeah. partiality there, definitely. But yes, what happens if I talk specifically for an Indian scenario? What happens Huh? generally? What happens in Indian scenario? A person who has already qualified chartered accountancy exams, uh, like 3 4 years back when there was an AS in the syllabus, not IND-AS. Okay, so he doesn't have the knowledge about IND-AS, so he needs to get a knowledge about IND-AS. So what he does, rather than going for the full ACCA qualification, he just goes for diploma IFRS to update himself to get the IFRS knowledge as well. Okay, Okay. but yes, there is an option available. If you want to go for full qualification, we can go for that, or if you want to go for just for diploma IFRS, we can go for that as well. Okay. Okay. Excellent. Just to add on and ask, suppose Vishal, students in CA course are struck up in intermediate or some at CA final level, or some class 12 standard students, if they show interest, so what are your guidance about those students who are wanting to pursue, or how is the scenario in India right now? See, if I have to answer this question, I'll say I'll divide this question first into the students into three categories. First Okay. one, the one who is already pursuing CA. Okay. The second one, who is giving CA exams but is stuck in some level, might be at CA intermediate or at CA final level. Okay, they are stuck at that level. They are unfortunately they are unable to pass. And the third category will be the ones who have already cleared their CA exams. Now, the answer will be different for all the three categories. The first category is the CA student who is giving their CA exams and clearing in the normal level, okay, like one or two attempts or third attempt or fourth attempt, okay, and they are fully directed to clear CA exams. For them, I say, boss, don't divert yourself to any other degree. See, every degree is good. What matters is the caliber of a student. If you have the Yes, yes. caliber with one degree, also you can succeed in the life. So doesn't focus on or divert yourself to getting multiple degrees. That will not help you at all. Focus on one degree, complete it with the quality, and you will succeed in the life. Now, coming to students who are stuck at some point of life, might be at CA intermediate level, they are giving their exams and they feel they are unable to succeed, might be for any reason. Okay, let's not go into that part. But if they are stuck, might be at CA intermediate or at CA final. Okay, or if they are at BCom stage also. Now, for them, I'll say definitely you should continue giving your CA exams, but understand, thinking practically, we need to start our career also, right? Because life में career start करना बहुत जरूरी है. हर चीज का देखो, we always say age is just a number, ठीक है? बट एक बात ये भी समझना जरूरी है कि अगर लाइफ में सही टाइम पे अगर अपना करियर स्टार्ट नहीं करोगे तो वैल्यू गिरती है, वैल्यू गिरेगी, राइट? तो एकदम सही एकदम टाइम पे करियर स्टार्ट करना बहुत जरूरी है. So what we have to do is please start your career, and how ACCA offers that flexibility. Okay, अच्छा. आप जिस भी स्टेज में हो सीए में इंटरमीडिएट फाइनल, आपके उस स्टेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट? ऐसा नहीं कि आपको एसीसीए फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना है. उस स्टेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और एसीसीए बहुत डिफरेंट पेपर है. आपको चीज को समझनी है, अंडरस्टैंडिंग, और आप क्लियर कर सकते पेपर को, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आसान है, बट मैं बोल रहा हूँ अप्रोच डिफरेंट है, तो क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है. ओके, So, just या प्लीज. अच्छा, you can. Okay, just to answer this part, now what happens is, if you can clear ACCS and start your career, and side by side you clear CA as well, that's an added degree for you, right? आपको शुरू में CA ही करनी थी,
आपका वो भी कंप्लीट हो गया, आपको एसीसीए भी साथ में डिग्री मिल गया, राइट? सो वो भी ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड देयर सीए एग्जाम्स, ओके, दे आर सीए क्वालिफाइड नाउ, ओके। Now they have to assess which career path they do want to take. Now if they want to go for a finance field, okay, specifically they want to go for finance, then I think some other degree might be like a CFA or FRM can be a better option, right? Now if they want specifically go into an accounting field or an auditing field, might be ACC can be good option. See, definitely ACC offers you the knowledge for accounting, auditing, financial management, performance management, everything, okay? It is in general covers everything. But if you want to go for specifically any career path, you should decide accordingly rather than just choosing a degree in the, you can say, crowd. So ACCA focus on which, like CFA and all, as you told, focuses on finance. Right. ACCA किस subjects पर focus करता है basically? There is no specific subject which ACCA focuses on. ACCA का focus है कि मुझे generic knowledge, जैसे CA है, can I ask you that CA किस पेपर में फोकस करता है? नहीं, CA gives you the सब generic knowledge of about everything. Similarly, okay. ACCA is also not focusing on any particular paper. ACCA gives you Okay. generic knowledge of all the papers. ओके, तो जस्ट टू समराइज योर पॉइंट विशाल, आपने कहा कि जो पर्सन सीपीटी या फिर इंटरमीडिएट लेवल में है उनको सीए में फोकस करना चाहिए, जो जो फाइन माइंड है, जो डिटरमाइंड है, या एब्सोल्युटली, और जो सीए फाइनल लेवल में किसी तरह स्ट्रक है ड्यू टू एनी एक्सवाइजेड रीजन, दे कैन थिंक ऑफ परसुइंग एसीसीए, राइट? राइट। और जो सीए क्वालिफाइड है वो लोग भी कर सकते हैं। अभी सिनेरियो क्या है विशाल आपके हिसाब से? आर सीए क्वालिफाइड डूइंग एसीसीए? Lot of CA qualifieds are doing ACCA. Lot of, I'll say, if I'm teaching to professional level students, okay, around 60% of those students are CA qualified. Around ओके, मतलब उनका हो चुका है। they are already a CA. अच्छा Then they are अच्छा, pursuing ACCA. ओके ओके, तो डेफिनेटली वो एड ऑन होता होगा तभी वो लोग सब परस्यू करेंगे। Definitely, there is an add-on. ओके, अच्छा, एक चीज अभी ये क्वेश्चन यहाँ उठ के आता है कि सपोज सीए क्वालिफाइड स्टूडेंट अगर एसीसीए करता है, या फिर सीए फाइनल लेवल पर कोई स्ट्रक स्टूडेंट एसीसीए करने का मन बनाता है, तो क्या उसको वापस मैंडेटरी इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप लाइक सीए में जो होता है वो करना पड़ेगा एसीसीए के देखो, लिए? ACCA बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। इफ आई से, इफ यू आस्क मी सर व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ACCA, आई से फ्लेक्सिबिलिटी। सो ओके अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह का है, ACCA सेज अगर आप ACCA ज्वाइन करने के पहले भी कहीं काम कर हाँ, रहे हो, मैं उसको भी रिकॉग्नाइज करूंगी। अगर आप ACCA करने के साथ साथ भी कहीं काम कर रहे हो, हम उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। ACCA का 13 पेपर्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद भी कहीं काम कर रहे हो, हम उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। What I want is you should have a practical experience of 3 years. Okay, ओके that's the only requirement. Now, एक जगह CA स्टूडेंट है तो उसने डेफिनेटली 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप कर रखी है, दैट यस, गेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन ACCA एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, तो अब स्टूडेंट्स लोग आर स्मार्ट इनफ, दे कैन चेक द वेबसाइट, उसमें तो लिस्टिंग दी हुई है ना, which companies are recognized and things like that? Definitely, there are a list of ACCA approved employers, but yes, see, what happens? More of the CA firms in India, they are not aware of the becoming ACCA approved, right? And also, ACCA is not recognized from a signing perspective in India, right? So Okay. they are not interested to get ACCA approved as well. So what happens? But yes, there is a process for that, and students can avail their practical experience which they have done in CA for this practical experience requirement in ACCA as well. ओके, एक्सीलेंट। तो ये काफी बच्चों का डाउट क्लियर करेगा, क्योंकि वापस अगर आर्टिकलशिप करना पड़ता है एसीसीए में तो एक एडेड बर्डन आ जाता है। राइट। अभी यहाँ पर अपने आते हैं मेन पॉइंट पर कि अभी जो सीए क्वालिफाइड हैं, पॉइंट वन, और जो सीए भी, मैं क्यों बोलूं, सीएमए सीएस भी तो कर सकते हैं, राइट? राइट कोई राइट भी कॉमर्स, कोई भी कर सकता राइट? है। तो भी सीए, अच्छा, सीए या फिर सीएस क्वालिफाइड है या सीएमए वॉटेवर, राइट। तो उन लोग अगर एसीसीए करना चाहते हैं तो कितना पेपर एग्जाम्प्ट है और क्या फीस का ब्रैकेट रहेगा विशाल, अगर आप रेंज बता पाओ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से, अगर कोई नॉर्मल बच्चा ACCA को स्क्रैच से स्टार्ट करता है तो 13 पेपर्स देने पड़ते हैं। अगर कोई ओके नॉर्मल बीकॉम एग्जाम देना चाहता है ACCA का, बीकॉम क्लियर करने के बाद, तो उनको 4 पेपर की एग्जामेशन मिलती है।
तो उनको 9 पेपर्स देने ओके पड़ेंगे, राइट। अगर कोई सीए में है या फिर सीएस में है या फिर सीएमए में है, सबके लिए डिफरेंट हाँ डिफरेंट ब्रैकेट्स ऑफ एग्जामिशंस है, ठीक है। ओके अगर मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स कैन जस्ट गो इंटर देयर क्वालिफिकेशन एंड चेक द व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर देम। Okay. ओके ओके Now, coming to the fees bracket. So what happens? The fees ranges. I will say in INR, though you have to pay the fees in pounds. Okay. In या INR, the fees ranges for around 10,000 to 15,000 per paper. That's the fees that you have to pay to ACCA Institute. Okay. If you are taking any coachings, that is separate. ओके समझ गया। तो आप बोल रहे हो 10 से 15 हजार पर पेपर Right. इनटू 30, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास यू आर Right. टेलिंग अबाउट द कोर्स फीस Right. एक्सक्लूडिंग द ट्यूशन। Right. और क्योंकि आपको पता है विशाल, हमारे मैक्सिमम क्राउड सीएज हैं, तो आप क्या बता पाओगे सीए क्वालिफाइड को कितना पेपर एग्जामिशन मिलता है? सीए क्वालिफाइड है तो उनको 9 पेपर्स के एग्जामिशन मिलते हैं, तो राइट। उनको उनको 4 पेपर 4 पेपर देने पड़ेंगे, राइट। हायर द एसीसीए का डिग्री। राइट। ओके ओके समझ 4 पेपर गया। देने और पड़ेंगे, बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द फीस, सो एसीसी का यहाँ पे रूल ये है कि इवन इफ द पेपर इज एग्जेम्प्ट फॉर यू, बट यू हैव टू ओके आल्सो गिव द एसीसी एग्जामिशन फीस फॉर दैट। इवन इफ द पेपर इज एग्जेम्प्ट, दैट मींस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द एग्जाम, बट स्टिल यू हाँ हैव टू हाँ गिव द फीस। But in ओके India, the best part is ACC offers scholarship on that. Okay, if you go through ACC approved learning partners, you can get a discount on that discount, or you can say scholarship for that. Okay, ओके that ओके scholarship ranges from 50% to 60 or 70% depending upon the multiple criterions which you can satisfy accordingly, which you can check also. ओके ब्रिलियंट। तो अभी सीए क्वालिफाइड को 9 पेपर एग्जाम्प्ट मिलेंगे, Right. 4 पेपर उनको देने पड़ेंगे। Right. तो 9 का उनका एग्जामिशन तो एग्जाम से रहेगा, पर दे नीड टू पे सम फीस Right. Right. कंसिडरिंग द शिप एंड थिंग्स लाइक दैट। Right. और उन लोग सीए फाइनल में स्ट्रक हुए हुए हैं, उन लोगों को क्या कोई एग्जामिशन है क्या? ओके, यस। तो इसमें क्या होता है, वी डेफिनेटली अगर कोई सीए फाइनल में है और स्टक है वहां पे, तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि वो सीए इंटर का ही स्टूडेंट है, और उसको 5 एग्जामिशन अराउंड मिलती है, ठीक है। 5 या 6 एग्जामिशन है वहां पे। बट अगर देख लेंगे। बट अगर एसीसी इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर आप सीए फाइनल एग्जाम दे रहे हो, किसी भी अटेम्प्ट में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, लॉ, कॉस्ट, इन चारों पेपर में से कभी भी किसी भी पेपर में अगर 40 से ऊपर भी आया है, तो आपका वो पेपर भी एग्जाम हो जाएगा। तो ओके मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाइनल क्लियर नहीं किए हैं, बट स्टिल उनका अगर इन चारों पेपर में 40 से ऊपर रहा है, तो स्टिल उनको नंबर एग्जाम है। ओके ओके समझ गया। तो मतलब अपना करियर स्ट्रक करने से पहले दे कैन लुक फॉर एसीसी, राइट? राइट। 4 पेपर क्लियर करना है, एंड 4 पेपर कैन बी क्लियर विद इन 6 मंथ्स। अच्छा अच्छा, राइट। वो कैसे हो, थोड़ा कैन यू इलेबोरेट, मतलब यस। कितना पेपर टर्म में दे सकते हैं बच्चे? ओके, सो एग्जाम्स हर साल में 4 बार होती है। मई, ओके सॉरी, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, 4 बार होती है साल में, ठीक है। हर अटेम्प्ट में आप 4 पेपर तक एग्जाम दे सकते हो। Okay. ओके Now you do have an option that you can clear within 3 months also, all this for purpose. But if you ask me personally, from my teaching experience, 4 पेपर एक अटेम्प्ट में देना रिकमेंडेड नहीं होता है। इवन इफ यू ओके गिव एंड क्लियर, सी, हाँ एक नोशन क्या होता है ना स्टूडेंट्स का, एग्जाम्स क्लियर करना है। भाई हाँ हाँ एग्जाम्स हाँ क्लियर करना है, आई टोटली अग्री, बट यू हैव टू स्टडी विद क्वालिटी ऑल्सो। जस्ट इफ यू क्लियर द एग्जाम्स, you have not got the concepts, so even if you clear the exam, you will not be able to succeed in your real life exams, right, where when you will go and work in the office. So what I say is, समझ के पढ़। 6 महीने भी लगे कोई दिक्कत नहीं, 2-2 पेपर करके दे। अगर तेरा कैलिबर तेरे को लगता है कि नहीं हो पा रहा है, 9 महीने में दे, बट समझ के पढ़ाई कर। समझ गया समझ गया। तो समझ के अगर बच्चा पढ़ाई करेगा तो वो इसमें इजीली सक्सीड कर सकता है Ideally एसीसीए में ना? it should be cleared within 6 months. Ideal time is 6 months. ओके ओके Fast paced ठीक है is 3 months. 9 months is also ideal, but if you're taking more than a year after qualifying CA to complete ACCA, you are late. समझ गया। मतलब एक सीए क्वालिफाइड अगर अपना 1 ईयर देता है तो वो एसीसीए का डिग्री ले सकता है, राइट? आराम से। ओके ओके, ये रहा बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन। तो अभी आप क्या बता पाओगे विशाल, इसका पासिंग परसेंटेज क्या रहता है, मतलब इन इंडिया? जनरली इफ आई टॉक यहाँ पे एसीसीए का अगेन बेस्ट पार्ट क्या है कि एसीसीए ना सब्जेक्ट वाइज पासिंग परसेंटेज निकालता है। सब्जेक्ट वाइज, इट्स नॉट
लेवल वाइज, जैसे सीए में होता है लेवल वाइज, इट्स सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आता है। तो अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट पासिंग परसेंटेज होता है, बट इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 30% टू 50% वन। ओके ओके, तो ये परसेंटाइल है कि परसेंटेज है विशाल? परसेंटेज। परसेंटेज है, ओके। अच्छा, और पासिंग पासिंग परसेंटेज तो इसमें भी 40 मार्क्स है ना? पेपर 100 के होते हैं। 50, 100 में 50 लाना है तो पास हो पाओगे आप। अच्छा, तो अभी अगर पेपर पैटर्न का बात करी जाए तो क्या एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है? नॉलेज लेवल जो होता है वो एमसीक्यू होता है, एंड वो ऑन डिमांड होता है, मतलब आपको जब मैन हो आप तब जाके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। वेन ओके एवर यू वांट यू कैन गिव एग्जाम्स। जो स्किल लेवल होता है उसमें क्या होता है, 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है एंड 40 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके। Now, if you come to professional level, it's totally case based, totally case based. You cannot predict the questions. So now it's like, again, just to discuss a few parts of it. So what happens हाँ in professional level, you cannot predict a question, and it's totally analytical based, totally analytical based. Like in what happens in skill level, they will ask you to calculate goodwill, right? ओके There is a calculation based. And but if you go to professional level, they will ask you to communicate this goodwill to the investors, to the you can say stakeholders. Now also they might ask you, like हम लोग अगर मैं just talking about my particular paper, यस। हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, राइट राइट, याद है सीए फाइनल में भी पढ़े थे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क विच गवर्न्स ऑल द इंड एएस इफ यू टॉक अबाउट सीए फाइनल। तो नाउ एसीसीए प्रोफेशनल लेवल आल्सो हेल्प्स यू टू एनालाइज कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या डिफाइन करता है और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में क्या डिफाइन किया हुआ है, एंड किस किस स्टेज पे ये दोनों कंफ्लिक्टिंग पोजीशंस पे है। ओके तो इट्स टोटली एनालिटिकल बेस्ड। सो स्टूडेंट्स को एसीसीए इस काबिल बना देता है कि अगर बाद हाँ में कोई चेंजेस हाँ। भी आए ना अगर स्टैंडर्ड्स में, आप वो भी कॉप अप कर सको। ओके ओके, जनरली मतलब एनल वो टैलेंट केस आना स्टडीज, एनालिटिकल केस स्टडीज काफी है लेवल 3 में, राइट? राइट राइट। और लेवल 1 पूरा एमसीक्यू है? लेवल वन पूरा नॉट एमसीक्यू, आई से ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके। ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड। तो जैसे अपने सुनते हैं विशाल की एक्चुअरीज का पार्शियल पेपर भी रिकॉग्नाइज्ड होता है, ऐसा कुछ है क्या इसी में पार्शियल पेपर्स रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेटली होता है? है, डेफिनेटली है। कैसे? बट ओके देखो अब क्या होता है ना कि थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। ओके, सी हम लोग हमेशा यस। सोचते हैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि यार हमने तो 13 पेपर में से 4 पेपर क्लियर कर लिए, हमारी भी वैल्यू होनी चाहिए। बट एक थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर को आपको तभी हायर कोई करेगा ना जब आप उसके लिए वैल्यू ऐड कर पाओगे, राइट। यस। तो जनरली एसीसीए बोलता है कि आपको हर स्टेज की वैल्यू है, हर पेपर की वैल्यू है। बट नाउ इफ यू स्पेसिफिकली टॉक फ्रॉम एन एम्प्लॉयर perspective, because I myself am an employer, okay, I have a CA firm of my own also. So if I talk from an employer perspective, definitely I believe that a student can add value only if it has cleared around 8 to 9 papers of ACCA। तब एक स्टूडेंट इस पोजीशन में पहुंचता है कि हाँ वो एक सीए फर्म या किसी भी इंडस्ट्री में जाके वैल्यू ऐड कर सकता है। ओके ओके, तो जस्ट एड ऑन क्वेश्चन ऑन दिस। जैसे एक क्लास 12 का बच्चा एसीसीए कर रहा है, तो उसको इंटर्नशिप, जैसे अपने सीए में सीए इंटर के बाद इंटर्नशिप मिलता है, राइट? तो राइट। एसीसीए कितने पेपर के बाद उसको इंटर्नशिप, और कितने साल का होता है वो भी आप अगर हाईलाइट कर पाओ। इंटर्नशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ एसीसीए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देता है कि आपको इतने पेपर्स के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट कर देना है। एसीसीए लीव दैट ऑप्शन टू यू। ओके इफ यू आर गेटिंग internship even after qualifying 1 paper also, you can start it off. But ओके generally talking about general situations, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है अराउंड 8 to 9 पेपर्स क्लियर करने के बाद। ओके, समझ गया। और इसमें इंटर्नशिप कितना साल तक, साल का रहता है, मतलब एक साल, 2 साल? 3 years। 3 इयर्स, अच्छा। लाइक सीए ओनली 3 इयर्स का इंटर्नशिप उसमें थ्री भी? इयर्स राइट। तो ईसीसीए का चार्टर होल्डर 3 इयर्स का वर्क एक्स के बाद मिलता है विशाल? राइट राइट। ओके, समझ एफिलिएट गया। एफिलिएट आपको 3 इयर्स मेंबर वर्क एक्स के बाद मिलता है। ओके, गॉट इट। तो आप क्या इस डेटा को क्या मतलब इस जो पॉइंट आपने कहा, अभी ट्रेंड एसीसीए का बूमिंग है, पीपल आर वांटिंग टू डू एसीसीए, इसको क्या आप डेटा के माध्यम से क्या बोल पाओगे? कितने स्टूडेंट अभी इंडिया में कर रहे हैं, ग्लोबली कितने हैं, इफ यू हैव दोस डेटा?
Exact data no one has, okay, but yes, definitely we have a brief round of data. Like you can say, India may back in 2016 there were around 500 students. Okay, now if you just see the data of 2021 or 22, it was around I can say 21,000 or 22,000. Okay, so 2016 में 500 स्टूडेंट्स थे और अभी हाँ अराउंड 21,000 और 22,000 स्टूडेंट्स हो गए. सो यू कैन जस्ट सी द ग्रोथ इन इंडिया, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लोबली what has happened globally में as of now we do have around 2,41,000 members around and 5,42,000 students around. गॉट इट, ग्रेट. मतलब इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है विशाल, एज पर योर Definitely, एक्सपेक्टेशन. definitely. डेफिनेट. ओके, तो अभी Just I'll add या one more line here. The growth can also be seen that every year we can see around 10,000 plus students enrolling in the ACCA course globally. ओके, और उसमें से आपने कहा 60% आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड. No, I'm saying taking this number globally. This 10,000 number is globally, not only for India. गॉट इट, गॉट इट. मतलब मैक्सिमम इंडिया में सीए फ्रेटर्निटी सीएमए क्या सीएस Yes, वाले लोग भी करते हैं definitely करते एसीसीए? हैं, definitely करते हैं. Major is from CA, but there ओके, are students from CS and CMA background as well. और क्लास 12 से भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, Right, राइट? right. They are. ओके. अभी क्या आप हाईलाइट कर सकते हो, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या टाइप के रोल्स एसीसीए होल्डर्स को दिए जाते हैं इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन कंसल्टेंसी फर्म्स? Okay. First of all, I'll have to answer it. I say exactly the same role which a chartered accountant in India gets. ACC also gets ओके, the same role. Now, just to illustrate it, uh, now if you see the trend change in the opinion, what happens? Any job description or a qualification comes for a job opening, they write CA oblique ACCA. If you have noticed this change, okay. ओके, Now, just coming to again on this platform, okay. Now, what happens for a big four firms, okay? When in Indian audit practice, they do hire ACCAs, but what happens, as you know, that ACCA doesn't have the signing authority in India. So what happens is the preference is more given to CA students. But yes, again, it's CA institute, or you can say big four firms. Big four firms hire ACCA for their consultancy practices, like you can say CFO advisory or a management consulting roles, okay. uh, Now industries also hire for, in you can say in corporate advisory, or you can say in finance and accounts, they do hire. So it's the role is more or less the same. It's just the awareness is increasing in India, and as the awareness increases, they are equally capable of everything what a CA can do, and it's again the same thing. मतलब आप टू समराइज एसीसीए को भी कहीं ना कहीं सीए के इक्वली कंपैटिबल रोल्स मिल रहे हैं. Exactly. They are getting the roles. डिमांड इज राइजिंग, राइट, डे Right, ऑन डे. right. ओके, तो जस्ट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन येट अनप्रोफेशनल, क्या पे पैकेज में रखा जाता है? मतलब पीपल आर वेरी ईगर टू नो एसीसीए होल्डर्स कितना कमाते हैं, या फिर सीए प्लस एसीसीए कितना सैलरी ब्रैकेट मिलता है उनको? Okay. This question is, I say, very subjective. To यस, answer यस. this, I'll say there are ACCA students who get a package of 4 or 5 lakh also. There are ACCA students who get a package of 20 lakhs or 18 lakhs also. I'll have a example also in front of me. One of my student got into a startup. She was a ACCA fresher and she got a job in a startup in Bangalore itself, paying around 18 lakhs. Okay. Okay. So again, so it totally depends. Again, I say that happens in CA as well, right? There are CAs who are getting a package of 4 lakh, and there are CAs which are getting the package of 25 lakhs or 30 lakhs also, right? It totally depends how well you can crack the interviews, how well is your working experience. So totally depends in relation to that. Now talking about CA plus ACCA, ऐसे देखो, जॉब में जब भी सैलरी होती है ना इंक्रीज, अगर लेट सपोज आप सीए थे ना, आपने एसीसीए भी कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत सैलरी इंक्रीज हो जाएगी. बट आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी. अगेन थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर. आप उसको क्या वैल्यू एड करके दे रहे हो? जस्ट आपने एक डिग्री ली, आपने डिग्री अपने एम्प्लॉयर को दे दी, एम्प्लॉयर को उससे क्या वैल्यू ऐड होगा? एम्प्लॉयर को तो कोई वैल्यू ऐड नहीं है. आपके पास एक एडिशनल डिग्री आपके लिए ठीक, अच्छा है, बट आपको ये समझना होगा कि आप जब एसीसीए करते हो ना, तो आपकी वर्क की इफेक्टिवनेस बढ़ती है.
because you become more knowledgeable, more informative, more analytical as compared to your peers in the office, right? So it gives you an edge. Now you can work more efficiently, more effectively, right? And you can work more better manner. So what happens, ये आपकी effectiveness को बढ़ाएगा, and which will turn increase your salary indirectly, not directly but indirectly. Definitely salary increase होगी, but directly नहीं होगी, indirectly होगी. ओके, समझ, मतलब अगर कोई स्टूडेंट अपने स्किल्स और नॉलेज पे फोकस करे तो डेफिनेटली वो Right. अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर सकता है, राइट? राइट राइट राइट. और इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है सैलिस, कि क्या होता है ना, देखो जब हम लोग सीए स्टूडेंट होते हैं ना, क्योंकि मैं भी खुद हाँ, सीए बैकग्राउंड से, तो मैं इस बात को जानता हूँ और समझता हूँ. तो जब सीए स्टूडेंट हाँ, होते हैं ना, तो वहाँ पे उस लेवल की, फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं होती है. वहां पे थॉट ओके, प्रोसेस ये रहता है, भाई एग्जाम्स क्लियर करना है. हाँ, उस हाँ, मोमेंट के लिए वो सही भी था, राइट? अच्छा, क्योंकि उस मोमेंट के लिए वो सही भी था कि एग्जाम्स क्लियर करना है, ठीक है. Now you have attained a degree, right? You have achieved a degree, सीए डिग्री हाथ में है, जॉब हाथ में है, जॉब सिक्योरिटी है, पैसे भी हाथ में है. अब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अब आप जॉब के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अब आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, राइट? तो अब जब पढ़ते हो ना, आप सोच सोच के, समझ समझ के रीजंस लेके पढ़ाई करते हो. मैं जब पढ़ाता भी हूँ ना प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स को, तो जो लेवल ऑफ क्वेरीज आती है ना, आई रियली एंजॉय टेकिंग द क्लास. क्योंकि एक जो नॉर्मल जो स्किल लेवल स्टूडेंट्स होते हैं, वो फ्रेशर होते हैं, वो पूरे फ्रेशर होते हैं, उनके माइंड में आईएफआरएस का कुछ नॉलेज नहीं होता है. तो उनको पढ़ाना क्या होता है, उनको नॉलेज आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट जब मैं प्रोफेशनल लेवल को, जो सीए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जो सीए स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेरी आती है ना, तो मुझे समझ में आता है कि इनको सीए के ऑलरेडी नॉलेज है, इन्होंने काम भी किया है. अब उस काम के नॉलेज को ये अपने थियोरेटिकल नॉलेज में अप्लाई करके इसको इनहेंस कर रहे हैं. तो लेवल ऑफ क्वेरीज डेफिनेटली इट्स वेरी गुड. मतलब एनालिटिकल माइंड इंसान का काफी इंक्रीज होता है सीसीए बहुत करने से ज्यादा, ना? बहुत ज्यादा. आप क्या एक एग्जांपल दे पाओगे? मतलब सीए में भी अपने वो सब करिकुलम है और राइट. एसीसी वो सब करिकुलम है, तो मतलब एक एग्जांपल के जरिए मतलब क्या आगे है ओके, एसीसीए में? मैं एक नहीं, दो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. एक बात प्लीज, समझो, जैसे प्लीज। मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया है, गुडविल कैलकुलेशन का, हाँ, राइट? हम लोग सबको ओके, मालूम है गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? यस, और अगर कोई यस, सीए नहीं भी है ना, वो भी इंडेक्स पढ़ेगा, वो भी गुडविल कैलकुलेट कर लेगा. बट ओके। बताओ, अगर आप अभी सिर्फ सीए हो आप, ठीक है ना, बताओ कितने आपको मालूम होगा क्या कि सीए को गुडविल को कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम लोग? नो, नो, गुडविल कैलकुलेट करना आता है? कम्युनिकेट इन्वेस्टर्स को नहीं करना आता है, राइट? कुछ भी लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, हम ये मालूम है क्या कि इसको कंपेयर कैसे करें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से, राइट? नहीं मालूम है. स्टेक होल्डर्स का क्या रिक्वायरमेंट्स है, राइट? दैट इज कॉल्ड एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स, जिसको हम लोग उसको बोलते हैं केपीआई, राइट? हम्म। जो केपीआई दिया जाता है एमडीए, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में, उसको हम लोग रीड करना जानते हैं, नहीं जानते हैं, राइट? सो वो सब चीज, सो इंड एस में केपीआई का क्या रिलेवेंस है, कैसे लिंकिंग करना है, वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है. फर्दर वन मोर एग्जांपल, अभी यूक्रेन में वॉर हुआ था, राइट? हमें मालूम है उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल्स में? नो. नाउ अगेन दैट इज गिवन इन द करंट इश्यूज. नाउ अगेन जो कोविड हुआ, उसका क्या इंपैक्ट है फाइनेंशियल्स में? दैट कम्स अंडर करंट इश्यूज. अभी एक मार्केट में हाइप चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, राइट? उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? दैट कम्स अंडर करंट इश्यूज. सो एसीसीए में व्हाट दे डू इज, वट एवर इज द करंट ऑनगोइंग इश्यूज इन द मार्केट, उसको भी पढ़ाया जाता है एज टेक्निकल आर्टिकल्स. सो एग्जामिनिंग टीम जो होती है ना, जो पेपर चेक करते हैं और जो पेपर के क्वेश्चंस बनाते हैं, वो लोग खुद आर्टिकल्स लिखते हैं ये वाले, ठीक है? और जो एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी लिखते हैं कि जो अभी करंट ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है. प्लस दे ऑल्सो राइट, रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर, मीन्स जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, इवन वो भी ड्राफ्टेड रहता है. So all these makes the paper again a different, and I'll say बहुत इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप में को ना यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि देखो क्या होता है, आपको रटना कब पड़ेगा? जब आपको एग्जाम में प्रोविजन लिखना है. यहाँ पे हाँ, आपको हाँ, प्रोविजन लिखना ही नहीं है. आपको रटना कब पड़ता है? जब यू नो कि आप अगर ये लिखोगे तो आपका सही आंसर है, आप ये लिखोगे तो आपका गलत आंसर है, राइट? हाँ, स्पेसिफिकली आई से फॉर माई पेपर, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, there is no हाँ, right answer, there is no wrong answer. Every answer is a right answer to the extent you are able to give a proper justification to that. ओके, ओके।
तो एक एक्सीलेंट। होता है कि कोई भी आंसर गलत नहीं है, आप अपने आंसर को प्रूफ कैसे कर रहे हो हम उसके लिए मार्क्स देंगे। शायद वही सही है विशाल, हमारे को करिकुलम में मेमोरी कार्ड की तरह लर्न, रटना, वॉमिट करने के अलावा एनालिटिकल माइंड डेवलप कराने का एग्जैक्टली। ही आज जरूरत है राइट दुनिया में। राइट तो राइट। इसका जैसे आपने पॉपुलैरिटी के बारे में बता दिया एसीसीए कोर्स और का, तो अभी आपको, आपका ओपिनियन के हिसाब से, सिंस यू आर फ्रॉम बोथ द फील्ड, सीए एसीसीए, अपकमिंग जो भी यंग जनरेशन है, इस वीडियो को कोई भी देखेगा, यंग जनरेशन, सीए, सीएस, सीएमए, या फिर जो भी कॉमर्स फील्ड, क्या लगता है आपको इस कोर्स का फ्यूचर? व्हाट डू यू सी इयर्स डाउन द लाइन? सी आई से इफ यू आर डूइंग दिस कोर्स, दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो इसको चॉइस करें सीए करना है एसीसीए करना है, दो स्टूडेंट्स है, तो वो चॉइस मैं उन पे छोड़ता हूँ। ठीक है, दोनों ही ओके। कोर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों ही कोर्स के अपने प्लस और नेगेटिव्स हैं। ठीक है, वो मैं चॉइस उन पे छोड़ता हूँ। नाउ आई विल आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर कोई कोर्स जो स्टूडेंट है या फिर कोई लाइक लेट्स सपोज ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है जो सीए क्वालिफाइड है, डेफिनेटली अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना चाहूं मैं, दे इफ दे आर डूइंग एसीसीए जस्ट टू टेक वन मोर डिग्री, प्लीज डोंट डू। हाँ। बट इफ यू आर डूइंग ओके। दिस एसीसीए डिग्री टू अपग्रेड योरसेल्फ, हाँ। दिस इज द डिग्री फॉर यू। ओके। एंड डेफिनेटली आप अगर अपने आप को अपग्रेड करोगे तो आपका सब कुछ अपग्रेड होगा सब कुछ अपग्रेड होगा। फाइनेंशियली। ओके ओके, समझ। एंड तो बिकॉज अभी सेलेस यहाँ पे क्या होता है ना, जस्ट अगेन फ्यू एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि अगर 10 years डाउन बैक देखोगे ना और अभी देखोगे ना, टाइम बहुत बदल रहा है। 10 years पहले क्या था ना, पूरा डिग्री बेस्ड मार्केट था, अब डिग्री बेस्ड मार्केट नहीं है। अगर हाँ आप हाँ हाँ साइंस के फील्ड में चल जाओ, पहले क्या था पूरा हाइप था आईआईटी 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 आईआईटी, राइट। आईआईटी को ही हाँ क्रॉस के पैकेज मिले, नॉर्मल इंजीनियर्स को नहीं मिल रहे थे। नाउ सी, हाँ नॉर्मल इंजीनियर्स को भी इक्वल पैकेज मिलता है अगर इफ दे आर टैलेंटेड इनफ, राइट। सिमिलरली, it doesn't matter, degree doesn't matter now whether you are a ACCA or a CA or a CS or a CMA, whatever you are, okay, what matters is your caliber, अच्छा, totally your caliber. So समझ you have to upgrade yourself. तो वेरी ब्यूटीफुल। अभी अगर स्टूडेंट, सिंस आप, यू आर अ टीचर एंड यू हैव बीन एन एम्प्लॉय, यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, देर आर मल्टीपल फेसेट्स विच यू आर मैनेजिंग, तो Right, अभी एक स्टूडेंट को अगर अपने लिए अगर डिसीजन लेना है right. कि एसीसी है, तो आप क्या कुछ पॉइंट्स बता सकते हो जो उसको डिसीजन लेने में मदद करे? Again, okay, few points I'll say. Whenever you have हाँ। to decide from the perspective of flexibility, your interest area, okay, what exactly suits you. You will you be able to rote learn things or not? Okay, I'll not compare any degrees, but these are the parameters which you can assess before analyzing any particular degree, whether it be a CA, CS, CMA, ACCA, CFA, FRM, any degree, for that matter, CPA, US, okay, or any degree, okay. These are the few parameters. And what is your interest area? That's the most important point. What is the interest area? Okay, what where do you see yourself? बिकॉज क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप ये नहीं कर सकते हो कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। आपको देखो आपको क्या चाहिए, राइट। आप देखो आपको क्या चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या होता है। अगर इफ आई से, मैं भी उनमें से ही था, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या चाहिए, राइट। हाँ। तो ऐसी डिग्री चूज करो जो आपको जेनरिक नॉलेज दे, अच्छा। सब चीज का थोड़ा 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 नॉलेज दे, जैसे सीए, जैसे एसीसीए, राइट। उसमें आपको सब नॉलेज मिलता है। बाद में व्हेन यू बिकम मैच्योर इनफ टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, then you can specialize yourself in that particular course or in that particular direction. ओके, But गॉट yes, इट। if you ask me any particular points to say about ACCA or for that matter CA, I'll not be able to do that because that will be giving any disgrace to any particular degree or highlighting any particular course that I don't want to do. This was very honest of you, Vishal, because many people misguide the students by telling very lot of things. तो अभी अगर एसीसीए के लिए बात करें, एसीसी अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड करना चाहता है, तो वो क्या, मतलब एसीसी इज फॉर व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स?
मतलब वो क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। Again, answer remains the same, Salis here. Answer totally remains the same. ACCA, you can say, is exactly what CA offers. What exactly CA offers, ACCA also offers, but in a more beautiful package, you can say. It adds to the package of flexibility, a lot of flexibility, I'll say. It adds to the package lot of analytical skills. Okay, it adds to the package current issues ongoing in the market, whether it be for financial reporting paper or for any other paper. It gives you a lot of options that what exactly you want to pursue in life. Choose only that paper rather than studying all the papers. Okay, so it gives you that. ओके ओके, एक्सीलेंट। तो अभी अगर अकाउंट्स या ऑडिटिंग में अगर किसी को स्पेशलिस्ट बनना है या फिर उसको और भी एवेन्यूज खोलने हैं अपने लिए, तो ही और शी कैन टेक अ जेनरिक Definitely. अंडरस्टैंडिंग एसीसीए कोर्स। Right, definitely. एवरी कोर्स में स्काई इज द लिमिट इफ यू डू इट Right. सक्सेसफुली। Right. तो अभी just we will conclude. We had a beautiful session with you, Vishal. Just since अभी ये वीडियो को काफी स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तो Right. आप एडवाइस देना चाहते हो, मतलब आजकल के यूथ आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, ये करना है वो करना है, कुछ एडवाइस कि वो लोग कैसे करें ताकि वो लोग ज्यादा मैक्सिमम स्किलफुल हो पाए उसी समय में। राइट। एक बहुत मेरे को लगता है, मैंने जैसे देखा है स्टूडेंट्स को, मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से मेजरली, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है ना कि मैं सीए कर रहा हूँ अगर या एसीसीए कर रहा हूँ, साथ में सीएफए भी कर लूँ, साथ में वो भी कर लूँ, साथ में वो, मैं मल्टीपल डिग्री साथ में कर लूँ, मैं साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लूँ। बॉस देखो, समझो यहाँ पे एक बात को, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, राइट। प्रॉपर स्लीप लेनी भी बहुत बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो आपका अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका कंसंट्रेशन चल जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा, एक काम करो बट अच्छे से करो। अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो तो सीए पे ही फोकस करके सिर्फ सीए करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्विच करना है एसीसीए में, राइट, जो जैसे मैंने बोला सीए क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, जो स्टक हो गए हैं सीए में, नाउ दिस दे वांट टू स्विच टू एसीसीए, then definitely they can focus on CA plus ACCA because they are creating a sort of, you can say, option for themselves, right? They want to start their career. So again, priority is their choice. Which course is their priority? That is their choice. But मैं बस इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कर रहे हो ना, इज्जत से करो और एक ही चीज पे फोकस करके करो। 10 चीज पे जाओगे करने के लिए, कोई भी चीज अच्छे से नहीं हो पाएगी। सीए करेक्ट करेक्ट। सब चीज कर लेंगे सोच रहे हैं, अच्छे से कुछ भी नहीं होगा। सो डू एक्सीलेंट, वन मतलब थिंग, क्वालिटी। कंसंट्रेट होके कोई भी चीज करो, डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस करो, तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे, Right? राइट? Like I will take your example itself here, right? First you completed CA, right? After हाँ that you started CFA, right? हाँ हाँ And you are हाँ very successful in your career. If I can see here, like आप everyday में काम कर रहे हो and you are growing in your career. I can see, I have seen you from the last 2 years. I've seen you, right? So how you are growing in your career. So because why? Because एक particular point of time पे एक particular चीज पे concentration दिया गया. So हाँ, that's the reason जरूरी of है। success. So example is in front of you. थैंक यू सो मच विशाल। एंड जस्ट एक लास्ट चीज, अगर कोई सीए क्वालिफाइड ये कोर्स को करना चाह रहा है, तो उसको क्या वापस बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, वो इंस्टीट्यूट के ट्यूशन लेने पड़ेंगे, या फिर जस्ट एक हाईलाइट अगर आप कर पाओ तो? ओके देखो, टेकिंग अ क्लास इज अ पर्सनल चॉइस, टोटली ठीक है। पर्सनल चॉइस। ओके, सो हम लोग अपने सीए में भी देखे थे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो विदाउट क्लासेस पढ़े, कुछ स्टूडेंट ऐसे हाँ भी हाँ। थे जो कुछ कुछ पेपर से क्लासेस लिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो सब पेपर से क्लासेस लिए। ओके गलत कोई भी नहीं थे, गलत करेक्ट। कोई भी अच्छा, नहीं थे, हम राइट। बट सब आपका। अपना अपना है, राइट, थॉट प्रोसेस अपना अपना है और गलत कोई भी नहीं है। सिमिलरली एसीसीए में भी बुक्स पढ़ना, हाँ बुक्स पढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, कितना भी एनालिटिकल हो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना हाँ हाँ पड़ेगा हाँ। डेफिनेटली। क्लासेस लेना नहीं लेना एक इंडिविजुअल चॉइस है। ओके ओके, एक्सीलेंट। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड अप ऑल द क्वेश्चन। एनीथिंग यू वांट टू से विशाल? So that's all. I think we have covered almost all the points we believe. Still, if anyone has any queries, particularly, they can reach out to you or me, like for that matter, and definitely we will solve their queries. And one more for the viewers, CA Vishal Jain and ACC, of course, he is very much active in LinkedIn and he has his own YouTube channel where he is posting revision lectures, guiding students about the ACC and things like that.
So you can definitely visit his own YouTube channel. You can connect with him on LinkedIn, or I think you have your email ID on LinkedIn there, Vishal. Right, right. It's given there. If you are physically staying in Bangalore, then you can reach out to him. He will be ready to guide you in any way. And thank you, Vishal, for spending your time. And Thank of you. course, I have also seen your career. You are fabulous in your career. You are managing two, three things. You have your own practicing firm, Right, right. teaching students, manage your YouTube channel. You are teaching CA, ACCA. Hats off to you, sir. And thanks a lot. Thanks, Keep thanks, enriching Alice. us. Chalo. Okay, Okay. yeah. Bye bye. Bye bye.